Well students, this is lecture number 2 of physical education class 11th. In the previous lecture of physiological aspects of physical education, we studied about digestive system and circulatory system. Today we are going to deal with muscular system and respiratory system. Just for recapitulation, I want to say these are all the metabolic activities, sum total of all the biological systems. Today we have to discuss about muscular system. Before going through this muscular system, I want to say it is only the muscles which give shape to our body. They are made of muscle fibers. As far as types of muscles are concerned, they are voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. As far as topic is concerned, and we have to go through only the effects of exercise on the muscular system. Before going through, I want to say voluntary muscles are those muscles which work according to their will. And what is the function of those muscles? They help in contraction and relaxation. As far as involuntary muscles are concerned, they are not under our control. They work according to their will. Then there comes cardiac muscles like that of heart, because those muscles are present in the heart, that is called cardiac muscles. They also not work according to our will. As far as the effects of those exercise on the muscular systems are concerned, सबसे पहले शेप एंड साइज ऑफ मसल्स चेंज. जहाँ तक शेप और साइज होती है मसल्स की, वो चेंज हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से. दूसरा होता है मोर कैपिलरीज आर फॉर्म. जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा जो कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं. उसके बाद मसल्स रिमेन टर्न्ड अप. उसके बाद जो ईजिली वो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कर सकते हैं. सिमिलरली कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट्स, जो फैट्स स्टोरेज वगैरह होती है उसको नहीं बढ़ने देती है एक्सरसाइज. चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? लाइक दैट ऑफ ब्लड and joints, they are called connective tissue. So bones and cartilages, they are included in this tissue, connective tissue. With the regular exercise, the connective tissue, the connective fibers become powerful. connective tissue के जो fibers होते हैं वो powerful बन जाते हैं, और stress जो है उनकी hard activity bear these tissues and these can be extended into some extent. उसकी वजह से उनकी एक्सटेंशन भी हो सकती है एक्सरसाइज की वजह से. और उसके बाद आता है एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स. जो मूवमेंट ऑफ मसल्स है उसमें भी मदद करती है एक्सरसाइज. फिर उसके बाद डिलेज फटीग, जो यहाँ जो हमें थकावट वगैरह महसूस होती है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो नहीं थकते हैं. उसके बाद इंक्रीज्ड फूड स्टोरेज. जो मसल्स की जो एक्सरसाइज रेगुलर होती है उसकी वजह से जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है. और उसके बाद नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव. जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स होते हैं मसल्स के, वो एक्टिव बन जाते हैं एक्सरसाइज की वजह से. करेक्ट्स द बॉडी पॉस्चर. बॉडी का जो पॉस्चर है उसको बिल्कुल करेक्ट करता है ये रेगुलर एक्सरसाइज. रिएक्शन टाइम इम्प्रूव्स. और रिएक्शन टाइम जो है वो इम्प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. द इम्पल्सिस एंड दीज इम्पल्सिस मूव क्विकली थ्रू मोटर नर्व्स एंड फाइबर्स which improves the reaction time, जिसकी वजह से reaction time जो है वो improve हो जाता है. Now I would like to discuss about respiratory system. What respiration is, you are already aware. It is a catabolic process where glucose breakdown occurs. So in this breathing process, exchange of oxygen, inhaling and exhaling of oxygen and carbon dioxide takes place. But we are concerned with this effect of exercise on the रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसके बारे में हमें पढ़ना है कि एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमारे पास नोज़ है, फेरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं. ये सारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में. रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो मदद करते हैं. यही ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. फिर उसके बाद जहाँ तक इसके इफेक्ट्स की बात है, नंबर फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम इम्प्रूव्स. तो सो आई वांट टू से रेगुलर
exercise helps to develop the muscles of the thoracic cavity and increase the lung volume. lungs का वॉल्यूम जो है वो increase हो जाता है, जिसकी वजह से amount the air that flows in and out of the lungs in each respiratory movement. और उसके बाद vital capacity improves. वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट जो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो कैपेसिटी लंग्स की बढ़ाती है. बिकॉज ऑफ टाइडल वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स इम्प्रूव्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर. जहाँ तक वाइटल कैपेसिटी है वो है अमाउंट ऑफ एयर विच एन इंडिविजुअल इनहेल और एक्सहेल. वो कितनी लेता है और कितनी छोड़ता है, वो कैपेसिटी उसमें मदद करते हैं. वो एक्सरसाइज की वजह से ही वाइटल कैपेसिटी जो है वो रेस्पिरेशन की इम्प्रूव होती है. दूसरा उसके बाद है रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज. जहाँ तक रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज की वजह से. और उसके बाद क्योंकि ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्टिविटी द ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ इनहेलेशन. जो ट्रेंड होता है उसको लेसर नंबर ऑफ इनहेलेशन की ज़रूरत होती है देन द अनट्रेंड पर्सन टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम. दिस इज ऑल ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज. उसके बाद है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इम्प्रूव्स. It is the amount of oxygen utilized by the body in 1 minute. और उसके बाद measured by individual work capacity. This is also improved with the help of regular exercise. उसकी वजह से maximum oxygen uptake improve होती है regular exercise की वजह से. उसके बाद जो इसकी जो और effects हैं, faster recovery rate, इसकी वजह से जो वाइटल कैपेसिटी और इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट है एरोबिक कैपेसिटी. एक इसमें जो हम बताते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक, एनारोबिक. विद रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइज, कैपेसिटी इम्प्रूव्स ड्यू टू विच इंडिविजुअल कैन परफॉर्म मॉडरेट वर्क और एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. और उसका स्टेमिना जो है वो बढ़ जाता है. और उसके बाद हम बता सकते हैं कि अवॉइड सेकेंड wind. The second stage of wind is crucial stage for the beginner. For a person who does regular exercise, जो regular exercise करता रहता है, it is hardly to felt him. A well experienced athlete does not feel it during the activity. जब जो athlete होता है उसको कोई फर्क नहीं आता है चाहे इसमें एक्सरसाइज की वजह से. उसके बाद एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज करता है. एंड्योरेंस जो है वो आपको मालूम होना चाहिए पहले कैपेसिटी क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है. एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एंड्योरेंस इज पीरियड. काफ़ी समय तक वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकता है. ड्यू टू विच एक्टिविटी कैन बी डन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी रेस्ट. काफ़ी समय तक वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकता है बिना रेस्ट के. दोज इंडिविजुअल्स हु डू नॉट एक्सरसाइज डेली कैन नॉट कंटिन्यू एक्टिविटी. जो रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम. Hence it is said that exercise can increase the endurance of an individual. इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक्सरसाइज की वजह से एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज होता है.